Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. We greet you in the name of Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर के नाम से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। How are you all? कैसे हो सब लोग? परमेश्वर भला है God is good और वो भलाई कार्य ही करते हैं। and He does all the good works. इस समय पर भी This time also, इस साल के एंड तक हम आ चुके हैं। we are towards the end of the year. ये 2025वां साल जब शुरू हुआ, This 2025 when it started, सभी के मन में अनेक तरीके के योजनाएं हुआ रहेगा many have had many plans in their mind. कि मैं ये करूंगा, I will do this, कि मैं वो खरीदूंगा, I will do that, I कि will मैं buy कुछ that, ना कुछ पैसा बचाऊंगा, I will save some money, कि मैं एक अच्छा नौकरी में बैठ जाऊंगा, that I will get a good job, कि मैं कुछ खरीदूंगा, that I will buy something, गाड़ी खरीदूंगा, I will buy a car, या फिर घर खरीदूंगा, or I will buy a या फिर मेरा house, सेहत को मैं अच्छा बनाऊंगा। or I can improve my health. ऐसे हर एक के जिंदगी में, हर एक के मन में कुछ ना कुछ हम प्लान्स रख के हम शुरू किए रहेंगे। We could have had some plans in our heart and started the year off. अभी हम साल के एंड तक आ गए हैं। Now we are towards the end of the year. अभी आपका जो योजना था वो कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ, हम नहीं जानते हैं। Now we do not know how many of your plans got ticked off and how many remained unfulfilled. लेकिन फिर भी आज का दिन में But still today, कितने लोगों को लगता है कि how many of you all think हमें प्रभु को धन्यवाद कहना है। that we should thank God? हालेलुया। Hallelujah. हम कुछ पाकर ही धन्यवाद बोलना जरूरी नहीं है। It is not important that we receive, then only we can thank God. हर चीज, मटेरियल चीज को पाकर, देखने वाले चीज को पाकर धन्यवाद बोलना तो दुनिया के लोग भी बोलते हैं। Even the worldly people, when they receive something, they keep on thanking God. यस और नो? हाँ कि नहीं? अभी जब 2025 शुरू हुआ था, In the beginning of 2025, वो आपका एक, सोच लीजिए कि आपका रनिंग रेस का स्टार्टिंग पॉइंट था। it was the start of a running race. कितने लोग रनिंग रेस देखे हैं? How many of you all have seen a running race? सिर्फ विवान देखा है रनिंग रेस। फियोना इज ऑल्सो सीइंग द रनिंग रेस। ठीक है, तो रनिंग रेस के समय जो लाइन होता है, If you all see the running race, there are lines. वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं भागने के Everyone लिए। at their place are ready to run the race. इमेजिन करो कि वो लाइन में 2025 लिखा था, Imagine that in that line it was written 2025. लेकिन अभी हम पहुंच गए एंड तक। Now we are towards the end. अभी हमारे सामने 2026 लिखा था रिबन के साथ। Now it is written 2026 with ribbon. अभी हम वो रिबन को तोड़कर हम आगे आ गए हैं। Now we are already ahead, breaking it off. भले ही आपका वो जो रनिंग रेस करते समय No matter while running the race, कितने लोग गिरे, how many people fell off. गिर के भी उठ के भागने लगे, After falling off also, some people got up and started running. कितने लोग उस दौड़ के इसमें गिरे, How many people in that race they run? चोट लग गई, They got hurt. दूसरे ने आपको हाथ उठाया, Some people would have helped you off. फिर वो भी आपके साथ स्लोली भागे। Then they also started running with you slowly. या फिर कितने लोग Or एक कदम उठाते ही with one step, पैर फिसल गया, they slipped off. फिर भी आप उठे, Still you all woke आप up बोले नहीं, and you all said no. मुझे एंड पॉइंट तक जाना है, I want to reach till the end. और आप रेस के एंड तक गए। And you all came towards the end. देखो आप कैसे भागे, How you all ran? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। It is not about that. ये मुख्य है It is important कि आपको परमेश्वर ने that God, कितना भी समस्या हो, no matter how many problems आपको you have, परमेश्वर ने उस साल के वो जो एंड पॉइंट था वहां तक परमेश्वर ने आपको लेकर God आया। has carried you towards the end of the year. हालेलुया। Hallelujah. So is everyone happy that we have come to the end of the year? सब खुश है क्या साल के आखिर में आके? तो कितना चोट है आपके ऊपर, How many scratches कितना you दर्द have? होगा, How many pain you कितने have? आंसू बहाए रहेंगे, How many tears you would have shed? लेकिन फिर भी Still, आप और हम ही you and I ये साल के एंड तक पहुंचे हैं। have reached towards the end of the year. कई सारे लोग हैं Many people, जो रेस के बीच में निकल गए they would have left in between और the race बोले and would have नहीं, said, मुझसे नहीं हो रहा है, I can't do it. क्योंकि उनका बल
because their strength, दुनिया था, it was the world, लेकिन but हमारा बल our strength परमेश्वर है, is the Lord. इसलिए हम That's why साल के एंड तक आए हैं। we have reached till here. हालेलुया। Hallelujah. जैसे डेजी ने ऑलरेडी बोला था How Daisy had already said कि परमेश्वर ही आपका बल है, that God is our strength. हम निर्बल है, We are without लेकिन strength, हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं but till here we have वो reached. परमेश्वर के बल से। It is because of God's strength. सो अभी अगर हम सबको बोलेंगे कि साल के एंड में ये थैंक्स गिविंग डे है, If we tell everyone that it is a Thanksgiving day, आप ये मत सोचिए don't कि think मेरे पास क्या है जो मैं थैंक्स बोलूं, what do I have to say thanks? कि ये साल मैंने क्या खरीदा कि मैं थैंक्स बोलूं, What have I got this year to say thanks? कि ये साल मैंने ऐसा क्या किया कि मैं प्रभु को धन्यवाद बोलूं। What have I done this year that I can say thanks? ये कोई चीजों के बारे में नहीं है, It is not about things. ये आप क्या खरीदते उसके बारे में नहीं है, It is not about what you got this या year. ये साल में आपको कितना फायदा हुआ उसके ऊपर नहीं है, It is not about how much you have been benefited this ये year. उसके ऊपर है It is about कि आप that you गए साल में last year, और ये साल में this year, आपके अंदर in you, कितना बदलाव हुआ है। how many changes happened. हालेलुया। Hallelujah. अगर गए साल से Last ये year, साल in this year, आप अपने आप को if और दीन बनाते हैं, you have humbled yourself more, या अपने आप को और एक्सेप्टेबल बनाते हैं, you have accepted yourself, या अपने आप को और भी आपने बेटर बनाया है, you are trying to becoming better, या अपने आप को और भी दूसरे लोगों को मदद करने के जैसे बने हैं, you have been helping out people and changing ये your nature. सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद बोलना You है। should be thankful for all this. जैसा चांदी How को परखा जाता है कई बार silver is refined ताकि वो एकदम प्योर हो जाए, so that it is pure. वैसे ही हम भी Same way, साल की शुरुआत से लेके अब तक from the beginning towards अगर here, आपके मन के अंदर एक बदलाव हुआ है, if there is a change in your heart, अगर आपके अंदर अपने आप को पूरी तरह से अपने शुद्ध बनाया है, if you have allowed yourself to be refined, तो then I think we have to give thanks to the Lord. फिर हम जरूरी है कि We धन्यवाद। don't need any material things to say thanks to the Lord. हमें कुछ material things की जरूरत नहीं है You परमेश्वर को don't need to धन्यवाद have a करने। bag full of gifts to say that yes, this is what I received and I need to say thanks. जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा बैग भर के गिफ्ट है और फिर परमेश्वर को बोले ये गिफ्ट दिए इसलिए I धन्यवाद। think we and our heart is what the Lord wants. हम और हमारा हृदय यही है जो परमेश्वर चाहता है। And if you have transformed yourself different, like what you were last year and this year, if you have changed yourself, अगर गया साल और अभी में अगर आपने बदलाव लाया अपने में, and if you have changed yourself like Jesus, और अगर आप परमेश्वर की तरफ बदल रहे हो and I अपने think that is more than enough for us to say thanks. इसका मतलब है कि आपको धन्यवाद कहना चाहिए। Hallelujah. 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें अपना जो योग्यता है उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिए हैं। What we deserve, God has given more than what we deserve. अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से मिलना If चाहिए, you think that you can receive God based on your work, तो शायद आप और हम आज यहाँ पर नहीं खड़े that होते। means you and I, we cannot stand over here. आज हम यहाँ पर खड़े हैं If we are standing over here, क्योंकि वो अच्छे हैं। because He is good. It's not because we are good, It is ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे, but He is good. but वो अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। तो टुडे आज सिर्फ हम धन्यवाद बोलने वाले We हैं। are just going to say thank you, No Lord. complaining, कुछ भी no complain, murmuring, कुछ भी कुछ गिड़गिड़ा नहीं। nothing. only thanks सिर्फ धन्यवाद because you are alive. क्योंकि आप जिंदा है परमेश्वर। ये महीने में भी हमने कितने सारे लोगों के फ्यूनरल्स में जाके आए हैं, This month I have attended so many funerals, लेकिन परमेश्वर ने ये साल के एंड तक आपको और हमें जीवित रखा है। but even towards the end of the year, we are still alive. मुझे लगता है धन्यवाद बोलने के लिए जीवित है वो काफी है। To say thank you, being alive is enough. हालेलुया। Hallelujah. Let us recollect, let us recognize what all blessings you have received in this year throughout from Jan till December. ये जो साल है शुरुआत से अंत तक क्या क्या आपको परमेश्वर ने दिया है, ये सब याद करके देखो। आप सोच कर देखिए, मतलब ऐसे आप चीजों को गिनती मत करो आपके घर पे कि क्या क्या नया लाया, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है।
Don't count the material things in your house what you got, because these keeps on getting accumulated. लेकिन आपके आपके अंदर, आपके हृदय, आपके शरीर, आपके गुण में, आपके कैरेक्टर में, आपके हर चीज में क्या बदलाव लाए वो बहुत मुख्य है। But remember the things inside your heart, your mind, your soul, your character, your behavior. What are the changes happened this year? हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो सब सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही कर सकते हैं। Because all these things are done by God. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। आंखें बंद कर कर धन्यवाद के साथ स्तुति का, हाथों को उठाकर यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आंखें बंद करेंगे सभी लोग। Let's keep our eyes सभी closed. लोग आंखें बंद करेंगे। Let's keep our eyes closed. यहाँ वहां नहीं देखेंगे, Don't look here and there. बस आपका सोच जो है वो परमेश्वर की ओर, Your thoughts should be towards God. आपका हृदय पूरा परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे। Your heart should be towards God. हम सोचकर देखेंगे कि ये साल के शुरुआत में मेरा क्या स्थिति था। In the beginning of the year, what was your situation? आपको लगा होगा कि मैं एक महीने भी मैं कैसे चलाऊं। You wouldn't have done 1 month also with your own strength. आप हर बार सोचे रहेंगे कि अगले महीने में मैं कैसे इस जरूरत को पूरा करूं। You would be thinking every month, next month, how can I fulfill all these आप things? ये सोचे रहेंगे कि 4 महीने के बाद जो होने वाला खर्चा उसको मैं कैसे संभालूं। You would be thinking after 4 months, whatever expenses I will have, how can I bear? आप ये सोचे रहेंगे कि मेरे बदन में इतना निर्बलता है, मैं उसको कैसे ठीक करूं। You would be thinking, I am without strength, how can I walk perfect? आप ये सोचे रहेंगे कि मेरा अभी का स्थिति इतना बुरा है, क्या ये सिचुएशन मेरा चेंज भी हो सकता है। You would be thinking, my situation is worse, can this situation be changed? लेकिन परमेश्वर ने आज हमें इस दिसंबर महीने तक परमेश्वर ने चलाए, उस प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे। But God has helped us to walk till December. We thank Him for that. सोचकर देखिए आपके हृदय के अंदर किस किस मार्ग के थ्रू आप गुजर कर आए थे। Imagine your ways and how you have overcome all those things. आपके मार्ग में कितने सारे तकलीफ कठिनाइयां थे। How many problems and thorns were there in your way?
कितने सारे लोग आपका अपमान किए रहेंगे, How many people would have insulted you? कितनी सारी स्थिति में आप अलग से जाके अकेले में रोए रहेंगे, How many times you would have cried alone? कितनी सारी समय पर आपको लगता है कि मैं मुझे झुंड में नहीं रहना है, मुझे अकेले ही रहना है। How many times you would have thought that I want to be alone? कई समय पर आपको लगता है कि क्यों मैं उनके जैसा नहीं हूँ, Sometimes you think, why I'm not like others? कई समय पर आपको लगा रहेगा कि क्यों मुझे उनके जैसे आशीर्वाद नहीं मिलता Many है, times you think, how come I'm not blessed like them? कई समय पर आपको लगता है कि क्या मेरा ये काम होगा, Many times you think whether this work will be done of mine. लेकिन परमेश्वर But God, इतने अच्छे हैं, He's so good. उस सारी स्थिति को हमारा बदल कर आज यहाँ तक हमको आके खड़ा He किया। has changed all those situations and Us- got us still here today. उस अद्भुत परमेश्वर को हम धन्यवाद That कहेंगे, miraculous God we are going to thank. न शिकायत करेंगे, No complaints, न बड़बड़ करेंगे, no murmuring, न कमियां बोलेंगे, or we will say that what we lack, बस इतना बोलेंगे but we will कि say, परमेश्वर God, आज अगर मैं खड़ा हूँ if I'm standing here वो today, आपके वजह से it है, is because of you. परमेश्वर आज अगर मैं जिंदा हूँ God, if I'm alive वो today, आपके वजह से है, it's because of you. परमेश्वर आज मेरे पास जो भी है Whatever I have today, वो आपके वजह से है, it's because of you, Lord. परमेश्वर अगर मैंने उस रेस को खत्म किया है If I have finished that race, वो आपके वजह it से is है, because of you. जब मैं दौड़ नहीं पाया When I was not able to आप run, मुझे आपके कंधे में उठाकर लाए थे, you took me in your shoulders and ran. मैं चल नहीं पाया When I was unable to walk, आप मेरे साथ चले हैं, you walked with me. जब मैं रो रहा था When I was आप crying, मेरे साथ रोए, you cried with me. जब मैं बीमारी में था When I was in sickness, परमेश्वर आपने मेरे को चंगा किए। you healed me, Lord. परमेश्वर हम आपको अपने हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद कहते God, we हैं। thank you from the bottom of our heart. हजार हजार जबान रहेंगे तो भी आपका स्तुति और आपको धन्यवाद बोलने के लिए काफी नहीं है। Even if you have 1,000 words, Lord, it is not enough to thank you. हाँ परमेश्वर, Yes, Lord. इस समय पर This हमारे time, कलीसिया के सारे लोगों को आपके हाथ में अर्पित we करते give हैं everyone in this church in your hand, Lord. और एक परिवार को हम आपके हाथ में अर्पित करते All हैं the families I give in your और hand. Lord. एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। From the small ones to the eldest, we give in your hand. अपने अद्भुत तरीके से सबके जीवन में आपने चिन्ह चमत्कार किया है, You have done miraculous thing in everyone's life. हम आपको धन्यवाद देते पिता Lord, परमेश्वर। we thank you. इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद कहते We हैं। thank you for this time, Lord. ऑनलाइन के माध्यम से देखने वालों के परिवारों को भी हम आपके हाथ में अर्पित करते The हैं। people who are watching us online, we give them also in your hand, Lord. आज भी आप वचन के द्वारा हमसे बातें करने You वाले talk हैं, through the word, Lord. हमें छिपाकर आप प्रकट होइए। We should be hidden and you must be प्रभु यीशु revealed. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते In the हैं, name of Jesus, we हमारे pray. जीवित अच्छे पिता। Our Heavenly Father. आमीन Amen. आमीन हालेलुया। Hallelujah. भजन संगीत के पुस्तक में In the book of Psalm, 100वां अध्याय में 4था वचन पढ़ेंगे। chapter 100, 4 100 Verses- में 4था वचन। verses 4. Let's read. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। Let's read in Hindi. Psalms 104. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। वचन कहता है The word says, कि परमेश्वर के द्वार के अंदर when you enter his जाते gates, समय enter his आपको gates. धन्यवाद के साथ जाना है। When you enter his gates, you should be thanksgiving to God. अगर आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना है When you want to be in the presence of तो God, आपको पहले परमेश्वर के द्वार के अंदर आपको प्रवेश करना है। that means you have to enter his gate. आप पहले द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, And to enter his फिर gate, उनके आंगन के अंदर प्रवेश कर then you सकते can हैं। enter his courts. आप एक घर के अंदर प्रवेश करेंगे, When you come inside a आपको house, अगर बेडरूम तक जाना है if you have to go तो to the पहले आप bedroom, हॉल में प्रवेश करेंगे, that means first you फिर have आप to अंदर enter जा through the सकते bed. हैं। First you have to visit the hall and then you can enter, go to अगर the मुझे Now,
डेसी के घर आना है if I have to come to तो मुझे Daisy's पहले house, पल्लवा के अंदर एंट्री करना पड़ेगा that वहां means I पर। have to come inside Pallava. उसके बाद बिल्डिंग के अंदर भी एक एंट्रेंस के लिए लॉक है। Then again inside the building there is a lock. आप जब तक पल्लवा के गेट के अंदर नहीं एंट्री करेंगे Now if you're not coming inside आप वो Pallava, बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं कर you सकते। can't come towards the building. आप फिर डेसी के घर तक पहुंच नहीं Then पाएंगे। you can't reach there. यहाँ पर भी वचन यही कहता The है word says, कि अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, now if you want to be in the presence पहला of तो God, आपको वो गेट के अंदर आपको प्रवेश करना you है। have to enter the gates. और गेट के अंदर आप तभी प्रवेश कर सकते हैं And you can enter the gates जब आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। when you have an identity और यहाँ card. पर वो आइडेंटिटी कार्ड And here the identity थैंक्सगिविंग card, है, it's thanks. धन्यवाद है। आप जब तक धन्यवाद नहीं बोलेंगे When you never say आप thank you वो to Lord, द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर you सकते। cannot enter that gate. और उसके अंदर आपको प्रभु के आंगन तक अगर जाना And है if you want to go towards the courts, तो फिर आपको स्तुति करना पड़ेगा। that means you have to praise Him. तो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? आपको एंट्री करने के लिए आपको पहला क्या करना है? What you should do first to enter? क्या करना है? What you should do? धन्यवाद बोलना You है। should say thank you, Lord. आज भी हम Today, कुछ भी आपका समस्या हो, whatever your problem, कोई भी आपका स्थिति हो, whatever your situation, लेकिन आपको अगर प्रभु के अंदर रहना है, if you want to be inside God, पहले आपको गेट के अंदर प्रवेश करना you पड़ेगा, have to enter the gates. फिर आप प्रभु के कोर्ट के अंदर जा सकते Then you हैं। can enter the courts. तो फिर आपको धन्यवाद के साथ ही आप जा सकते You हैं। can only be enter through thanksgiving. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम क्या करते हैं? What do we do? बिना धन्यवाद बोले We never say thanks. शुरुआत ही हम The beginning only, शिकायत से करते we हैं। start with our complaints. हम आते ही When we start, बोलते हैं we say, कि प्रभु ये क्यों नहीं किया, why you didn't do this? मेरी जिंदगी में इतना समस्या क्यों है, So many problems आप in इसको my life. बदल दीजिए, Change it, आप Lord. उसको कीजिए, You मुझे do- ये you- ब्लेसिंग दीजिए। You do this, you do that. We keep on saying to God. यही पूछते रहते This हैं, is what we लेकिन do. प्रभु को सुनाई ही नहीं देगा, God will never be क्योंकि able आपने to अंदर तक गया ही नहीं। because you did not enter क्योंकि His आपको presence. अंदर जाने के लिए When you have to पहले enter, धन्यवाद बोलना you है। have to say thank you, पहले Lord. धन्यवाद बोलेंगे, When you say thank फिर you, उनकी स्तुति करेंगे when कि you praise आपने Him, जो भी दिया उसके लिए स्तुति करेंगे। and when you thank Him for You all, praise him when you praise because he God, is worthy of the praises. because वो लायक है, वो योग्य है आपका स्तुति के उसके लिए. बाद आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं, And after that you're sitting with and God. then you can talk to God. And फिर आप बात कर सकते But हैं. what are we trying to do? हम क्या करते? We don't want to enter inside Pallava gate. हमें अंदर नहीं आना We है, don't want to enter inside the building हमें gate. बिल्डिंग के अंदर भी But you नहीं want to directly reach inside the house. है. फिर भी आपको घर के अंदर How जाके is it बैठना है. possible? कैसे जा सकते हो? Hallelujah. हालेलुया. एफिसियों के पुस्तक में the- 5वें 17वां वचन पढ़ेंगे। In the book of Ephesians, chapter 5, let's read Ephesians chapter 5, verses 17. 17. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Hallelujah. Let's इस read कारण it. निर्बुद्धि ना हो, पर धन्य से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। वचन ये कहता है The word says, कि निर्बुद्धि मत रहो, don't be unwise, लेकिन ये समझो but understand कि this. परमेश्वर की क्या इच्छा है। What is the will of the Lord is. दूसरे ट्रांसलेशन में इंग्लिश में ये बोला है, And another translation says, therefore do not be foolish, but मूर्ख मत रहो, but understand समझो what the will of the Lord is. परमेश्वर का चाहत इच्छा क्या आज है. भी हम Today also, ये वचन के जैसे ही in this word, फुलिश है। we are foolish. तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of तो Lord? इसमें क्या बोल रहा है कि What is it? What does it say? निर्बुद्धि मत रहो, Don't be लेकिन unwise, ये समझो but कि understand परमेश्वर की क्या इच्छा है। what is the will of the Lord. बिना बुद्धि के मत रहो, Don't be unwise, लेकिन ये समझ लो but कि understand परमेश्वर की इच्छा क्या है। what is the will of the Lord. परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? What does God desire तो from क्या you? है परमेश्वर की इच्छा? What is the will of the Lord? 1 Thessalonians 5:18. In the book of 1 Thessalonians, let's read. 5:18.
In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में हिंदी रीड में? करेंगे। कौन सा? 1 5:18 Thessalonians 5:18। क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि दबाने वालों बैल का मुंह ना बंधेगा, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूर का हकदार है। 1 Thessalonians में 5:18। नहीं, 1 Thessalonians 5:18। ठीक है, वचन ये कहता है The word says, कि आपकी हर स्थिति में all your situation, आप धन्यवाद बोलो, you thank क्योंकि God परमेश्वर की because यही इच्छा है। this is the will of God for you. हालेलुया। Hallelujah. एफिसियों में बोला है In the book of कि Ephesians, मूर्ख मत रहो, that do not be unwise, निर्बुद्धि मत रहो, don't be foolish, जानो, understand, पहचानो, understand, समझ लो कि understand परमेश्वर की क्या इच्छा है। what is the will of God. तो उसका आंसर हमें 1 Thessalonians में मिल रहा है। And that answer is we are getting here. व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की क्या इच्छा है? What is the will of God? In everything you have to give thanks. कि हर स्थिति में, Every हर situation, सर्कमस्टेंसेस में whatever circumstances हमें you are in, परमेश्वर को क्या करना है? what do we do? धन्यवाद कहना है। We have to thank God. वचन ये कहता है The word कि says हर स्थिति में, every situation, हर चीजों में, everything. हर चीजों के लिए करके नहीं बोला है। It is not said that for everything you have to give thanks. It's not said that for all things you say thanks. ये नहीं बोला है कि हर चीज के लिए तुम धन्यवाद It is करो। said in all things you give thanks. वचन कहता है कि हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति In all में, circumstances you give thanks. हर एक परिस्थिति में आप धन्यवाद करो। आपका कोई भी लाइफ का कुछ भी सीजन रहने दो, Whatever season you are in your हर life, सीजन में आपको धन्यवाद बोलना in है। every season of your life, you have to be thankful. आपकी जिंदगी का कोई भी मौसम रहने दो, Whatever season, हर मौसम में आपको क्या बोलना है? in every weather, what do you have to do? धन्यवाद बोलना है। You have to हमें ये say चीज thanks. सीखना है। You have to understand and आपकी learn. जिंदगी में In your life, वो बीज बोने का भी सीजन हो सकता है, there is a time when you sow the seed, या फिर छोटा सा वो पेड़ उगकर आया, वो सीजन भी हो सकता है, or it can be a season where it just sprouted, या फिर एक एक पत्ते आए, वो सीजन भी हो or सकता it है, can be a season where only barely we can see 1 to 2 leaves, या फिर आपका पूरा पेड़ फल और फूल से लदे हुए, वैसा भी सीजन हो or it सकता है, can be a season where you're fully grown with fruits and flowers, या फिर आपके पास जो फल फूल पत्ते हैं सबका गिरने का भी सीजन हो सकता or है, it can be a season where all the fruits and flowers, everything are falling off, या फिर आपका पेड़ पूरा सूखा हो गया, or it is a dry plant now. ऐसा भी सीजन हो It सकता can है। be a season like that. लेकिन वचन कहता है But word says, कि कोई भी स्थिति होने दो, whatever season, कोई भी सीजन होने दो आपकी whatever जिंदगी season में, you are in, लेकिन आपको हर सीजन में आपको धन्यवाद बोलना in है। every season, what do you have to do? Hallelujah. You have to say thank you. हमें हर चीजों के लिए धन्यवाद नहीं बोलना है, It is not about everything, but it is about every season. लेकिन हर चीजों के अंदर हमें धन्यवाद In बोलना है, every situation, in everything, you have to give thanks. क्योंकि हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर से मिला Because है। whatever we have, it is from God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो आज भी हम Today also, कुछ भी आपका स्थिति होने दो, whatever your situation is, कुछ भी आपका स्ट्रगल्स होने दो, whatever your struggles are, कुछ भी आपका पेन्स होने दो, whatever your pain you have, कुछ भी आपके जिंदगी में चलता रहेगा, let it be anything. लेकिन हर दिन आप उठते समय But every day when you wake up, बोलेंगे धन्यवाद, you say thank you, Lord. धन्यवाद पिता You परमेश्वर, should say thank you, आज Lord. के दिन देखने के लिए आपने मुझे कड़ा के इसके लिए We धन्यवाद, thank you because we are able to see this new आज day. के दिन में आपने मुझे जिंदा रखा इसके लिए धन्यवाद। We thank you because I am alive today. भले ही मेरा मार्ग बहुत कठिन था, Maybe my way is too tough, लेकिन आपने मुझे चलने के लिए बल दिए, इसके लिए but you धन्यवाद। have given me the strength to walk in this tough भले way. ही मेरा दौड़ बहुत कठिन था, Maybe my run is too tough, लेकिन फिर भी आपने मुझे फिनिशिंग पॉइंट तक लेके आए, इसके लिए but धन्यवाद। you have been with me and able to take me till the finishing point. भले ही मैं दौड़ में गिर गया था, Maybe I would have fallen off while लेकिन running, मैं फिर से उठ के मैं भाग कर मैं फिनिशिंग पॉइंट तक आया, इसके लिए धन्यवाद। but still I was able to overcome and reach till here. हालेलुया। कई समय पर हम गिरे हुए थे, Many times you would have fallen off. कुछ लोगों की मदद से भी हम उठकर With some people help, आप फिनिशिंग पॉइंट तक आए रहेंगे। you would have come till here. वैसे लोग अपनी जिंदगी में हैं, If we have such people उसके in लिए it, भी हम धन्यवाद you should बोलेंगे। thank God for such people. इस दुनिया में क्या होता है, What happens in this world? हम We धन्यवाद बोलने के लिए भूल जाते हैं। just forget
लेकिन but शिकायत करने के लिए to complain, याद रखते हैं। we always keep remembering. शिकायत करने के लिए हम क्या करते हैं? What do we do? याद रखते हैं। We keep it. अगले बार in आने दो। remembrance. Next time, मैं उसको पूछने ही वाली हूँ। I will ask. मैं पूछने वाली कि क्यों ऐसा किया। I will ask why this happened. अगले बार उन मिलने दो। Next time, if I ऐसा meet, क्यों किया? why you did ऐसा this? करना चाहिए था। You should have done this. मुझे ये क्यों दिया? Why you मुझे did वो this? देना चाहिए I था। should have received. मुझे ये कलर क्यों दिया? Why you gave मुझे this वो color? कलर चाहिए I था। need this color. हम शिकायत करने के लिए रिमाइंडर डाल के रखते हैं कि मैं ये पूछूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये कमियां बोलूंगा। For complaining, you will always remember what all things we do. लेकिन थैंक्स बोलने के लिए हम भूल जाते हैं। But to thank, we always forget. हम घर जाकर मैसेज करते हैं, And we message after reaching अरे home. थैंक यू बोलने भूल गई, इट वाज वेरी नाइस। We forgot to say thank you, it was good. लेकिन शिकायत करने के लिए But to complain, जब आमने सामने हैं, when we are ध्यान से बोलते हैं, we तूने ऐसा say, क्यों किया लास्ट टाइम। why you did this तो way? मतलब शिकायत करना हमें इतना याद रहता है That means to complain, we all कि remember. धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं। That to thank, we forget. बिकॉज Why? वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। क्योंकि हम सब कुछ लाभ के हमें लिए लगता लेते है हैं। परमेश्वर अच्छे हैं We think God is good और वो ब्लेस करने के लिए है, and He is there to bless वो us. ब्लेस करते रहेंगे, He should bless हम us लेते रहेंगे। and we will keep on लेकिन हम receiving. ये भूल जाते हैं We कि forget हमारा भी कुछ पार्ट है, that we also have our own. हमारा भी कुछ हिस्सा है, We also have हमें our भी own कुछ part. करना है। We should also do something. हमें क्या करना है? What should we do? धन्यवाद बोलना है। We should thank God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो हम सोचकर देखेंगे आज के दिन की कई सारे समय पर कहाँ पर हमने धन्यवाद बोलना भूल गए हैं। Now remember where all we forgot to say thank. बहुत सारे लोग हम चर्च में देखते हैं, Many times in church we see छोटी छोटी चीजों के लिए आके यहाँ पर गवाही देते हैं। people come in front and give a testimony for small things. मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। I feel so nice to hear उसी them. समय पर That time मुझे शर्मिंदा भी होता है I feel कि हम इतना पाकर भी after receiving वहां पर all जाके these गवाही things, नहीं देते। we never go ahead and say testimony. हमें लगता है We think कि अरे ये छोटा चीज बोलेंगे if we say this तो small thing, कलीसिया में लोग क्या समझेंगे। what will the people in the church हम think? कलीसिया के लोगों के लिए गवाही नहीं बोलते हैं, We are not here to हम testify the people परमेश्वर of के God. लिए धन्यवाद बोलते हैं। We testify for our Lord. हालेलुया। Hallelujah. लूक के पुस्तक में In the book of Luke, 17 में chapter 17वां 17, अध्याय ले लेंगे। let's take 17. अभी ये जो इंसिडेंट है उसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं और एक ही वचन इसमें हम रीड We करेंगे। will read only one verse. Let's look into it. अभी ये इंसिडेंट जो है, What happened here? परमेश्वर यीशु मसीह God, एक गांव में, Jesus, when he was on earth, गांव की बाहरी ओर से वो जा रहे थे। he was walking from outside the village. गांव के बाहर Outside the village, 10 कुष्ठ रोग थे। there were 10 lepers. तो वो दूर से परमेश्वर को बुलाए They called Jesus कि ये from afar off. परमेश्वर, God, हमारे ऊपर दया करो। have mercy on us. परमेश्वर ने God, वहीं से बोले from there only he कि said, तुम जाओ you go और अपने याजकों को दिखाओ। and show yourself to priests. उन्होंने कुछ नहीं किए, He didn't do anything. वहां से उन्होंने विश्वास के साथ पुकारे He said with faith, कि हे परमेश्वर, they said with faith, हमारे ऊपर दया करो। Jesus have mercy on us. परमेश्वर समझ लो कि इतनी ही दूरी में है, Imagine God is और standing बोले, far off and he said, तुम जाकर you go, अपने आप को you, आपके प्रीस्ट के पास दिखाओ। you go and show yourself to your priest. क्योंकि उन दिनों में Because those days, अगर किसी को कुष्ठ रोग है, someone has leprosy, उनको गांव के बाहर निकाल देते थे they used to remove from outside the village और वो गांव के अंदर and inside the village, नहीं आ they सकते। can't come inside. अगर उनको गांव के अंदर आना है If they want to come inside, तो पहले उनको जाकर then first अपने याजक को दिखाना पड़ता है they have to show themselves to the priest, और वो आपको पूरी तरह से देखेंगे and the priest will see you from कि top to आपका कुष्ठ bottom, रोग ठीक हो गया है क्या। whether you are healed of your leprosy. अगर आप पूरा ठीक हो गए If you are fully well, फिर आपको गांव के अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। then you are allowed, given permission to go inside. तो वैसे ही परमेश्वर Same way, गांव के बाहर से जा रहे थे he was walking from outside तो the village, उनको वहां पर and 10 कुष्ठ रोग दिखे there were 10 lepers, और वो दूर से बोले and he कि said, हमारे ऊपर दया करो। and they said, have mercy on us. और परमेश्वर ने एक ही चीज बोले And God said, कि तुम जाके अपने याजक को अपने आप को दिखाओ। God said, go and show yourself to the priest. अभी वो जाते जाते When they were walking, एक आदमी ने one अपने person, आप को देखा he saw आधे रास्ते में
halfway through कि वो पूरा ठीक हो गया था, that he was fully well, वो पूरा चंगा हो गया था, that he was fully healed, वो वहां से लौट कर वापस आया and he returned back एकदम खुशी से, with full of happiness, चिल्लाते हुए shouting loud कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। that I am healed of the Lord. हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर भेजे, कितने लोगों को परमेश्वर ने How भेजे? many people God sent? 10 कुष्ठ रोग। 10 lepers. रास्ते में ही एक ही जन ने अपने आप को देखा, Only one saw himself, और देखते ही and when he saw, वो आगे बढ़कर याजक के पास नहीं गया, he did not go to the priest. दौड़कर वापस आया यीशु मसीह के He पास came back running towards और Lord बोला and said, मैं पूरा ठीक हो गया I am हूँ। fully healed. हम लूक में 17 में 17वां वचन पढ़ेंगे। So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ गए? हालेलुया। कौन है वो 9 जन? Who were the 9? आप और हम ही हैं। It's you and I. 10 जन को परमेश्वर ने बोले कि तुम जाओ, God said to 10 people, go. लेकिन एक ही आदमी ने अपने आप को देखा कि हाँ मैं स्वस्थ हो गया। Only one was able to see that I am healed. हम भी स्वस्थ हो गए, We are also healed. लेकिन हमें अभी तक विश्वास नहीं होता है कि हम स्वस्थ हो गए, But we are not able to believe that we are healed. या फिर स्वस्थ हो गए Or we are उसको healed. एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए। We take it for granted. हाँ चलो ठीक है, उन्होंने ब्लेस किया, ठीक हो गया, लेकिन हम वापस जाके उनको धन्यवाद बोलना भूल जाते हैं। We forget to go and thank God again. लेकिन जब वो एक आदमी गया था But when that one तो person, परमेश्वर God, वो एक आया करके नहीं देखे, he did not see that one person. मेरे वो 9 बच्चे क्यों नहीं आए वो पूछ रहे He हैं। asked, where are the other 9 people? whom परमेश्वर I am बोल healed?" रहे हैं, God is saying, क्या 10 जन चंगाई नहीं हुए? isn't 10 people तो healed? बाकी के 9 किधर है? Where are the other 9? इसका मतलब परमेश्वर आपकी राह देख रहे हैं, That means God is in expectation of you. परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहे हैं God is waiting for you. कि मैंने मेरे बेटा को ये दिया था, I have given my son this. मैंने मेरी बेटी को ये दिया था, I have given my daughter मैं this. यहीं पर बैठा हूँ I am still waiting और मुझे here. यकीन है कि वो वापस आके मुझे धन्यवाद I बोलेगी। believe that they will come again and tell me thank you. लेकिन हमने क्या किया है? What do we do? वही का वही रास्ते में चंगा होकर When we are healed on the way, वापस आने का इतना सुस्तड़ है हमें we are so lazy to come कि हम back. उधर का उधर चले गए। Then we leave that place and go ahead. वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे में नहीं है, We don't have a thankful heart. क्योंकि हमें सब कुछ ले लेकर आदत हो गया है। Because we are always in the habit of receiving from God. लेकिन जब भी एक चीज लेते हैं तो उसके लिए धन्यवाद बोलने का आदत हमें नहीं है, We do not have an habit of thanking God for what we और have. जो चीज नहीं है उसके बारे में शिकायत करने का आदत है। And the thing what we do not have, we have an habit of complaining. हमें शायद हम जो पूछ रहे वो नहीं मिला रहेगा, Maybe we would have not received what we are asking God. लेकिन हमें वो मिला है But we have got जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, that what God wanted to give you. और परमेश्वर And God, सही समय पर सही चीज आपको देंगे। at the right time, He will give you the right things. हालेलुया। Hallelujah. अगर इस 9 जन में से हम में से कोई है If amidst these 9 people, if you think you are one of them, तो आज एक अच्छा मौका है today is a good कि opportunity हम अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को दे देंगे that we will give our entire thing, और our heart बोलेंगे- towards God, और बोलेंगे, and say, लॉर्ड आई एम परमेश्वर, वेरी सॉरी आई फॉरगॉट यू, मैं भूल गया हूँ, मुझे माफ कर दो मैं ऐसे ही परमेश्वर. निकल गया था, I left the place लेकिन halfway. मुझे अब पता चला Now I understood कि मुझे जो मिला है whatever I received, वो आपके वजह से मिला I है। received because of you. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपको लगता है कि मुझे ये नौकरी मिला है, If you think that you have received the job, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रिय भाइयों देयर बहनों, आर मेनी विद द सेम क्वालिफिकेशन विदाउट जॉब आउटसाइड, काफी लोग ऐसा है वही पढ़ाई किया है बट जॉब नहीं, लेकिन हमें मिल गया है। but we have got. तो हम सोचते हैं We think, कि मुझे उसके ऊपर का स्थान क्यों नहीं मिला, why I have not got a position ahead of that? लेकिन अब हम जो जिंदगी जी रहे The हैं life what we are वो living, कई लोगों का सपना है। it is a dream for many. हालेलुया। दुनिया के लोगों के जैसे सिर्फ कुछ लेंगे तो धन्यवाद नहीं बोलना है, Don't be like the people of the world. If they are receiving something, they say thank you. लेकिन कठिनाइयों के बीच में भी हमें धन्यवाद बोलने सीखना Amidst है, your problems and struggles, you have to say बिकॉज thank दैट इज समथिंग डिफरेंट। you.
क्योंकि वो अलग है। लेट अस बी अ यूनिक पर्सन। हम यूनिक रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, मैंने अगर कुछ तोहफा लेकर आया है if I would have got और something मैंने पार्थ को दिया, and if I have given तो Parth, पार्थ लेते ही क्या बोलेगा? what will Parth say? थैंक यू। Thank you. दिस इज नॉर्मल, यस और नो? हाँ कि नहीं? ये नॉर्मल है कि नहीं? तो ये जो 10 लोगों को जो परमेश्वर ने चंगा किए, When God healed the 10 people, एक्चुअली 10 के 10 आके धन्यवाद बोला हुआ रहना चाहिए, all of them should have said thank you. बिकॉज दैट इज नॉर्मल। क्योंकि वो नॉर्मल, क्योंकि 10 लोगों ने कुछ पाए थे, because 10 people received something. 10 लोगों ने चंगाई पाए थे ना, 10 people तो received 10 something. लोगों को आके धन्यवाद बोलना चाहिए था। 10 people should have said दैट thank इज अ नॉर्मल सिचुएशन you. वो तो बहुत नॉर्मल कि है। व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से थैंक्स। जब आप कुछ लेते हो तब आपको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अभी हम दूसरा एक स्थिति देखने वाले Now हैं, there is another situation. बिना कुछ पाए भी Without anything, आपको धन्यवाद बोलना है। you should say thank you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम हबाकुक के पुस्तक ले लेंगे, In the book of Habakkuk, हबाकुक के पुस्तक में पहला अध्याय में दूसरा वचन पढ़ेंगे। the book of Habakkuk, chapter 1, verses 2. O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you violence, and you will not save. हालेलुया। Hallelujah. हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तो उद्धार नहीं करेगा? हालेलुया। हबाकुक जो है Habakkuk, शास्त्र में in the book, एक भविष्यद्वक्ता है। he is a prophet. अभी हबाकुक Habakkuk, जो स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, the situation what he is तब talking उनको घेर कर towards him, उनके पूरा सराउंडिंग में towards his बहुत surroundings, सारा अन्याय होता था, it was full of violence. बहुत सारे अधर्मी के लोग होते थे, All unrighteousness was बहुत filled. सारे दुष्ट काम करने वाले लोग होते All थे, the people were there with evil बहुत minds. सारे अन्याय और अधर्म कार्य होता था, Violence and unlawful things were लेकिन happening. फिर भी वो लोग अच्छे थे। But still they were good. हबाकुक Habakkuk, ये सिचुएशन को देखे he saw the उनको कुछ situation. समझ में नहीं आ रहा था, He was not able to उनको understand. बहुत सारा मन में डाउट है He had so many doubts, कि ये इतना अन्याय चल रहा है, so many problems, इतना अधर्म कार्य चल रहा है, all वो unlawful इतना things, बुरा काम कर रहा all the है violence, और वो फिर भी अच्छा है। but still they are क्या good. परमेश्वर देख नहीं रहे? It's not God seeing. क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आ It's रहा है? not God ये understanding. हबाकुक का शिकायत है। It was a complaint of Habakkuk. हबाकुक का क्या शिकायत था? What was the complaint of कि Habakkuk? बहुत सारे लोग अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छे हैं। Unrighteous people, unlawful people are still happy. हम भी कई समय पर यही सोचते हैं ना We are also thinking the कि same. दुनिया के लोग The people of the हमसे world, अच्छे हैं, they are better than us. वो तो बुरे काम कर रहे हैं, They are doing फिर भी बढ़ रहे हैं, bad things, but still they are वो growing. अधर्म काम कर रहे They हैं, are doing फिर भी unrighteous अच्छे, things, but still they are वो लोगों को धोखा देते they हैं, are cheating on फिर people, भी बढ़ते रहते but हैं। still they are growing. हबाकुक को कंफ्यूजन है, Habakkuk had a confusion. हबाकुक को डाउट है मन में, He had a doubt in his वो mind. परमेश्वर को कंप्लेन करता है। He complains to God. तो हबाकुक के पुस्तक में आप पहला अध्याय में पूरा कंप्लेंट्स देख सकते हैं। In the book of Habakkuk, first chapter, it was full of complaints of Habakkuk. एक में 5वां वचन आप पढ़ सकते हैं। In book 1, verses 5, if we read, look among the nations and watch. Be utterly astounded. For I will work a work in your days, which you would not believe, though it were told you. हालेलुया। Hallelujah. अन्य जाति के और चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी दिन में ऐसा काम करने पर हूँ, जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करो। अभी हबाकुक का कंप्लेन कुछ और है। Habakkuk had a totally different complaint. हबाकुक बोल रहा है कि इतना अन्याय चल रहा है, इतना अधर्म चल रहा है, फिर भी सब अच्छे हैं। Habakkuk is saying it's so much of violence and unrighteousness, still people are doing good. हबाकुक शिकायत करता रहता है Habakkuk is complaining और परमेश्वर उसको रिप्लाई देते रहते and हैं। God is replying him. तो 5वां वचन में परमेश्वर ऐसा रिप्लाई देते हैं God is giving a reply in verse कि 5. तुम जाति जाति के लोगों को देखो
look around the और तुम nations and watch, एकदम चकित हो जाओगे and you be utterly क्योंकि मैं astounded. तुम्हें ऐसा काम करने वाला But हूँ I will work a work जो तुम विश्वास भी नहीं कर सकते which हो। you would not believe. हालेलुया। Hallelujah. हबाकुक ने कंप्लेन किया, परमेश्वर ने उसको एक वचन दे दिए। Habakkuk complained and God gave him a word. हम भी साल के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ शिकायत किए रहेंगे, आपको भी कुछ ना कुछ एक वचन मिला रहेगा, When you also complain, God would have given you a word. लेकिन हम उस वचन के ऊपर कितना भरोसा रखें वो बहुत मुख्य है। How much you believe that word, that is important. आप वो वचन को लेकर When you take that word, अगर आप फिर से शिकायत ही करने वाले if हैं you complain again, तो फिर बाहर के लोग में और हम में कुछ डिफरेंस नहीं है। then there is no difference between the people of the earth and you. लेकिन यहाँ पर हबाकुक But here, जैसे परमेश्वर के सामने कंप्लेंट्स रखते जाता है, when he keeps on complaining, परमेश्वर उसके हर चीज का जवाब देते रहते हैं, God keeps on answering for everything. लेकिन एंड में In the end, हबाकुक what? अपने आप को इतना तैयार कर लेता है, He prepares himself, वो परमेश्वर के बारे में इतना समझ लेता he है, understands God, वो परमेश्वर के बारे में इतना सुन लेता है, he hears God out, वो अपने आप को इतना सरेंडर कर देता है, surrenders towards God, इतना दीन बना देता he है humbles himself. कि आप सोच भी नहीं सकते। You can't even imagine. अभी ये वचन हम पढ़ेंगे Now let's read this word. हबाकुक 3 अध्याय में Habakkuk chapter 3, 17वां वचन। though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. हालेलुया। Let's read. क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई वृक्ष के केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना खानों में गाय बैल हो। हालेलुया। Hallelujah. सब लोग हैं हमारे साथ? Are you all with us? चर्च आप लोग हैं साथ में? Are you all with us? हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हबाकुक बोलता है Habakkuk says here, कि अंजीर के पेड़ में even though the fig tree, क्या नहीं है? what? फूल नहीं है। It may not blossom. अभी यहाँ पर हबाकुक देखो एग्जाम्पल अंजीर का पेड़ का दे रहे, दाखलता का दे रहे, ऑलिव ट्री का दे रहे। He is giving so many examples that the fig tree may not blossom, मैं सोच fruit कर may देख be not रही- there on vines, or olive tree may fail. मैं सोच कर देख रही थी I was thinking, कि क्यों नहीं कुछ और उदाहरण दिया, why is he not giving other? क्यों सब पेड़ का उदाहरण दिया है। Why is he giving only about the trees? ये भी हो सकता है कि हबाकुक को थोड़ा फार्मिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज है, Maybe it is because Habakkuk understands May- farming better. मे बी वो रिलेट करना चाहता है। He wants to relate it. अभी ये सारे जो पेड़ के बारे में बताया है, All the trees he's talking about, दाखलता हो या अंजीर हो या ऑलिव हो, wine or fig tree or olive tree, सबको अपना फल देने का जो टाइम पीरियड है there is a time period for giving वो fruit. 3 से लेके 5 साल के अंदर है। It's between 3 to 5 years. अभी हबाकुक अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है Habakkuk wants to express himself कि भले ही मैंने that अंजीर का पेड़ लगाया हो I have kept the fig और tree उसको फूल देने का एक समय है and there is a time for it to और मैं blossom, देख रहा हूँ, and I'm looking towards लेकिन it. फूल है There नहीं। is no, it is not blossoming. हम भी यही करते हैं ना, We do the same. कुछ चीज शुरुआत करते हैं We start a thing और जब उसका फल देने का समय and है there is a time हम एकदम राह के साथ देखते we हैं wait for it. कि हाँ अभी इसका फल मिलेगा, Now I will get the हाँ fruit. अभी इसका फल मिलेगा, Now I will get the अभी fruit. इसका फल मिलेगा, Now I will get the आज fruit. मिलेगा, Today कल मिलेगा, Tomorrow. अगले महीने में मिलेगा। Next month. हम देखते रहते हैं we keep on looking लेकिन towards फल it, नहीं है। but there is no fruit. हबाकुक यहाँ पर बोल रहे हैं Habakkuk is saying, अंजीर के पेड़ में in the fig भले ही tree फूल नहीं हो, there is no blossom. फूल का मतलब What does fruit mean? स्वीटनेस, सम चेंज इन योर लाइफ। कुछ तो change आपका बदलाव आपका जीवन आपका पेड़ in a tree. एकदम नॉर्मल है, It is a very normal लेकिन tree. जब एक पेड़ में फूल आने लगता है When there is a fruit, कितना सुंदर लगता है। how beautiful सो it दैट is. इज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वो खुशी है आप तो यहाँ पर हबाकुक here एक अंजीर के पेड़ को In a fig tree. अपने खुशी के साथ लिंक कर रहे, he's trying to resemble. भले ही मेरी जिंदगी में खुशी नहीं हो, No matter what, I don't have happiness in my life. फिर क्या बोल रहे हैं, What is he saying? दाखलता में In the vines फल नहीं हो,
there is no fruit. फल का, दाखलता मतलब हमेशा शास्त्र में जॉय, इसका मतलब खुशी. एकदम मन से जो जॉय होता है ना, खुशी, वो है दाखलता का मतलब खुशी है। It's all about joy, आनंद. तो यहाँ पर हबाकुक वापस Here again, एक वाइन ट्री को he's comparing with a wine. खुशी के साथ लिंक कर रहे हैं। He's comparing it with joy. भले ही मेरी जिंदगी में कुछ डिफरेंस नहीं है, No matter, no difference is there. भले मेरी जिंदगी में कुछ खुशी नहीं I है, don't have happiness. और फिर बाद में बोल रहे हैं And then he says, इवन इफ द ऑलिव क्रॉप फेल्स, even if the olive crop fails, इसका मतलब क्या है? what does this mean? भले ही तेल नहीं है, Even if there is no oil, विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, बढ़ोती, समृद्धि नहीं है. कि आपके जिंदगी में समृद्धि नहीं If है you don't have prosperity या in your life चंगाई नहीं है, or no healing, क्योंकि तेल का मतलब हमेशा समृद्धि और चंगाई होता है। when it says about oil, it is always about healing and prosperity. उसके बाद बोलते हैं Then it says, क्या नहीं है? what you don't have, कुछ अन्न नहीं है, there is no food. मतलब आपने बीज बो दिए That means you have sown लेकिन the seed, काटने के लिए कुछ है ही नहीं। but there is nothing. क्या आप No सोचकर food. भी देख सकते हैं? Can you imagine? इट इज नॉट अ नॉर्मल ट्रायल दैट हबाकुक इज गोइंग थ्रू, जो हबाकुक go through कर रहा है वो नॉर्मल चीज नहीं है. इट इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्टी टाइम। बहुत कठिन समय है. हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पेड़ भी बालकनी के पास रखते हैं, When we keep a small plant in our हम balcony, रोज जाके देखते हैं we go every कि day. आज थोड़ा सा आया क्या, Is there आज anything? थोड़ा आया क्या, Is there anything? और अगर वो फूल का बड भी आया है, Even if there is a bud on that plant, फिर हम बोलेंगे 2 दिन में अब ये फूलेगा। now we will say within 2 days we will start getting flowers. यहाँ पर हबाकुक Here Habakkuk, आप अपनी जिंदगी को with his own उन्होंने life, कई सारे पेड़ के साथ लिंक किया he है has linked with so many trees. जिनका एक टाइम पीरियड होता है ब्लॉसम देने के लिए, फ्रूट देने के लिए, फल देने के लिए, Where there is a time period to blossom and give fruits and और flowers. वो रुके हैं, And he's waiting. लेकिन फिर भी क्या नहीं है, And what is not there? कुछ नहीं है, Nothing is there. न फूल है, Neither, न फल है, neither fruit nor न अन्न flower. है, No न food. खुशी है, No happiness. कुछ नहीं है। Nothing. हबाकुक कंफ्यूज्ड है, Habakkuk is totally हबाकुक confused. को समझ में नहीं आ रहा He's है, not able to understand. क्यों मैं, Why me? क्यों मेरे साथ ही, Why it is with और me? क्यों इस स्थान तक क्यों। And why to this extent? लेकिन अब हबाकुक पूरा प्रिपेयर्ड है, Now Habakkuk is fully prepared. इसलिए That's why वो he's, ऐसे उदाहरण के द्वारा हमें समझाना चाहता है with this example he's trying to make us कि understand. भले मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, No matter what is happening in my life, भले ही न फूल हो, neither there is no न fruit, फल हो, nor flower, न खुशी हो, no happiness, न तेल हो, no oil, न अन्न हो, no food, कुछ भी हो, no matter what. या फिर बकरी को क्या नहीं है, वो झुंड नहीं है, अलग Flower हो does गए not तुम, have a fold. तुम अलग हो गए। You are totally alone. इसका मतलब ये है, देखो भेड़ बकरी मतलब हमेशा When it talks about वेल्थ flowers, है, वेल्थ। it is prosperity. तो आपके पास वेल्थ नहीं है, If you don't have या फिर आपके prosperity, पास सिक्योरिटी नहीं है, if you don't have a security, तो हबाकुक अपनी जिंदगी के हर चीज को इसके अंदर मेंशन किया है। Habakkuk has explained everything about his life in this बोल book. रहे भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, No matter I don't have anything, क्या आप और हम ये बोल सकते हैं, what can you and I say this thing? क्या हम भी बोलेंगे ऐसे, That we can also say. क्या बोलेंगे, What do we say? अंजीर के पेड़ में भले ही क्या नहीं है, Even if the fig tree may फूल not नहीं है, blossom, even if the fig tree may not दाख blossom, लता में भले ही फल नहीं है, nor fruit be on the vines, ऑलिव क्रॉप फेल हो जाए, though the labor of the olive may fail. फेल का मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो झाड़ है लेकिन झाड़ में क्या नहीं है, When it says fail, that means there is a tree, but it is not yielding anything. ऐसा नहीं कि कच्चा फल है, That doesn't mean there is a raw fruit. वचन कहता है Word देयर says इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, नो हार्वेस्ट, नो फ्रूट, कुछ भी नहीं है, नो फ्लावर, no flowers, no fruits. which means no joy, That means कुछ भी आनंद नहीं है, no happiness, खुशी नहीं, no sweetness, कुछ भी sweet no नहीं, healing, चंगाई नहीं, no prosperity, समृद्धि नहीं है, no wealth, wealth no नहीं है, security. security You नहीं है. don't have anything in your life. आपका जीवन में अभी में कुछ भी नहीं है, फिर भी अगला वचन हम पढ़ेंगे, 18वां वचन, लास्ट वचन, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और उसके उद्धारकर्ता परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। Hallelujah. फिर भी हम परमेश्वर के अंदर कैसे रहेंगे? Still, how will we be? आनंदित रहेंगे। We will be rejoicing in the Lord. आनंदित रहेंगे। लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम आनंद रहेंगे परमेश्वर के अंदर। शास्त्र में कई सारे जगह पर धन्यवाद और रिजॉइसिंग, ये जो थैंक्स गिविंग एंड रिजॉइसिंग गो हैंड इन हैंड। In the Bible, there are so many places where thanksgiving and rejoicing goes hand in hand. दोनों साथ में रहता है। It's together. थैंक्स गिविंग जो वो आपका जेस्चर है, Thanksgiving is a gesture. लेकिन रिजॉइसिंग जो है But what is वो rejoicing? एक्शन है। It is an इट इज action. एक्सप्रेसिंग। वो आपको बताना है. अभी समझ लीजिए मैं कुछ दे रही हूँ डेजी को, If I'm giving something to her, भले उसको वो चीज पसंद नहीं है, whether she likes it or not, फिर भी वो लेते समय क्या बोलेगी? थैंक यू। but she will take and say thank you. बट शी इज नॉट हैप्पी। But वो खुश नहीं है. लेकिन हमें क्या करना है? But what we should हमें do, रिजॉइस होना है। we have to rejoice. एंड दैट रिजॉइस इज एन एक्शन। और वो rejoice करना एक action तो है. हबाकुक यही बोल रहे हैं Habakkuk कि says, भले मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो, I don't have anything in my life. पूरा बैरन है, I'm barren. पूरा रेगिस्तान जैसा है, It is like a कुछ wilderness. नामो निशान नहीं है मेरा जिंदगी का, There is no sign of change. फिर भी मैं आपके अंदर खुश But रहूंगा। still I will be rejoicing हालेलुया। inside. Hallelujah. फिलिपियों की पुस्तक में आप देख सकते In हैं the book of Philippians, 4 अध्याय में 4th chapter, कि आई रिजॉइस इन द लॉर्ड it says, बट आई विल नॉट बी एंग्शियस विद एनी ऑफ माय सिचुएशंस मैं चिंतित नहीं रहूंगा मेरे परिस्थिति को बट देखकर, विद पर प्रेयर एंड पिटिशन प्रार्थना के विद द्वारा थैंक्सगिविंग और आई धन्यवाद के प्लेस माय द्वारा रिक्वेस्ट मैं मेरा before जो the Lord. विनती है परमेश्वर के हालेलुया। द्वारा दूंगा। कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें कैसे रहना है? even if you don't खुशी have से anything, रहना you है। have to be happy. खुशी से रहना एक्शन है। क्या Be है? happy is an इट इज action. एन एक्शन। Action. यू मे से हाँ थैंक यू, आप बोल सकते हो दैट इज योर धन्यवाद। जेस्चर। बट इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, अगर आप अंदर से दैट खुश इज हैं, नॉट रियल थैंक्सगिविंग। वो सच्चा धन्यवाद सो है। आज हम क्या करेंगे? What do we do today? मन से खुश हो जाएंगे, We will be happy क्यों? from आपकी our- खुशी को देखकर But because शैतान of- लज्जित होकर भागना है। Satan should be ashamed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह जब पैदा हुए थे When God was born in the earth, और 3 राजा को जब रास्ता मार्ग दिखाना था, 3 wise men needs to know the way. तो उनके सामने एक स्टार जा रहा था There was a star going ahead of और वो them. स्टार जाकर एक घर के ऊपर जब रुका, And when the star stood still at a place, तो तीनों राजा को ये पता चला 3 kings came to कि know यहीं पर मसीह पैदा हुए this हैं, is the place where the Messiah is यही born. घर पर मसीह पैदा हुए हैं। This is the place where the Messiah is उसी born. कारण That's आज why आप और हम भी you and I, हमारे घर पे in our एक स्टार लगाते हैं we keep a कि star हमारे घर पर that मसीह पैदा हुए हैं। in our house Messiah is born. हमारे घर पर हम स्टार लगाते हैं, When we hung a star, लेकिन अपने हृदय के अंदर अभी तक हमने स्टार नहीं लगाए। if you don't have a star inside your heart, हम सिर्फ अच्छे स्टार लगा के अच्छी से लाइटिंग डाल के हमारे घर को सजा देते if you हैं, just keep on lightening your home with different लेकिन stars, अपने हृदय के अंदर वो खुशी नहीं है। you don't have that happiness inside your लेकिन heart. आज वो जो रिजॉइसिंग है, In today, in that rejoicing, दैट इज अ साइन, वो एक चिन्ह है, दैट इज अ सिंबल, that is a दैट symbol, इज अ स्टार, वो एक स्टार है। दैट द लॉर्ड इज इनसाइड यू परमेश्वर आपके और अंदर ही इज बॉर्न इनसाइड यू। और वो आपके अंदर पैदा और हुआ। आपको मालूम है, And you know what? जब उजाला आता है When there is light, सारा अंधेरा निकल जाता all है। darkness leave you. हालेलुया। Hallelujah. तो आज Today, वो साइन, वो सिंबल that sign and symbol, नॉट ओनली हैंगिंग इन आवर हाउसेस, वो सिर्फ अपना घर में सिर्फ बट नहीं, लेट अस ब्रिंग इट इनटू आवर हार्ट। but हम अपने हृदय में लाए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सबके पास गीत का एक शीट है, हम गीत गाएंगे। कोई भी स्थिति हो, Whatever situation, हमें क्या करना है? what we should do, धन्यवाद बोलना है। we should thank God. நான் வீசும் வலைகளெல்லாம் வெறுமையாய் வந்தாலும் என்னோடு அவர் இருக்க குறையேது. புயல் அடித்தாலும் அலை அடித்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது.
கரை தெரியாமல் கண்ணலைந்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது. என் நம்பிக்கை அவமானாலும் என் துதிகள் ஓயாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டா நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டா நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. மீன்களை பிடித்தவன் மனுஷனை பிடிக்கவே மாற்றின இயேசு என் படகில் உண்டு. நிச்சயம் ஒரு நாள் மறுதலிப்பேன் என்று அறிந்தும் அழைத்தவர் அருகில் உண்டு. மீன்களை பிடித்தவன் மனுஷனை பிடிக்கவே மாற்றின இயேசு என் படகில் உண்டு. நிச்சயம் ஒரு நாள் மறுதலிப்பேன் என்று அறிந்தும் அழைத்தவர் அருகில் உண்டு. நான் வீசும் வலைகள் எல்லாம் வெறுமையாய் வந்தாலும் என்னோடு அவர் இருக்க குறையேது. புயல் அடித்தாலும் அலை அடித்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது. கரை தெரியாமல் கண் அலைந்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது. என் நம்பிக்கை அவமானாலும் என் துதிகள் ஓயாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. கடலிலே மிதந்திடும் படகை நான் நம்பல. கடல் மீது நடப்பவரை நம்பி வந்தேன். நீர தெரிந்த மீனவனாயிருந்தும் நீர் வந்து கை தூக்க காத்திருந்தேன். நான் மூழ்கும் செய்திட ஊர் பேச விடமாட்டீர். அழைத்தவர் கைவிடல் என்று பேச வைத்தீர். அலை அடித்தாலும் புயல் அடித்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது. கரை தெரியாமல் கண் அலைந்தாலும் என் துதிகள் ஓயாது. என் நம்பிக்கை அவமானாலும் என் துதிகள் ஓயாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. கைவிட தெரியாதவரை விட்டு ஓட முடியாது. உம்மை விட்டால் நம்புவதற்கு வேற யாரும் கிடையாது. सभी लोग आंखें बंद करेंगे. Let's keep our eyes closed. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद We कहते thank हैं. you for this time. आज के दिन में भी Today, Lord, आपने वचन के द्वारा you have spoken through your फिर word. से हमें याद दिलाए हैं You have made us कि remember हमारी सारी स्थिति में आप हमारे साथ हैं. that in all our situations you are there with us. और भले ही कुछ भी हो, And no matter what happens, लेकिन आप हमें यहाँ तक चलाकर लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद. but you have made us walk till here. We thank you for हम that. अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं. We fully surrender ourselves, Lord. हमारी जिंदगी में कोई भी स्थिति हो, कोई भी समस्या हो, Whatever situation we have in our life, लेकिन हम हमेशा आपके अंदर खुशी से रहेंगे. but we are happy inside of you, Lord. यस लॉर्ड जीसस, Thank you, Lord. इस समय तक लेकर आए धन्यवाद. You have made us walk till here. We साल thank के you. आखिरी तक लेकर आए धन्यवाद. In the end of the year, you have taken आपने us ये and led us. दिनों को भी देखने की कृपा हमारे ऊपर दिखाई, इसके लिए आपको धन्यवाद. You have given us the grace till here. We thank you, Lord. लोगों की हृदय की सारी इच्छा
को आपके हाथ में अर्पित करते हैं। We give all the desires of the people ये in जो your hands. फेस्टिव सीजन है वो आपके हाथ में अर्पित This करते हैं। festive season we give in your hands. सारी घर की कमियां को आप पूरा कर दीजिए All the lack you will fulfill. और एक के घर में और एक के हृदय में आप पैदा हुए पिता, Lord Jesus, you have been born in every hearts and homes. सारी कमियां दूर होने दो। Every lack should go आप out. भरपूरी से और एक घर को आशीर्वाद You कीजिए। fulfill their desires, Lord. Let their houses be filled. हमारे अंदर विश्वास हबाकुक के जैसे लेकर आइए Bring पिता। us the faith like Habakkuk. भले हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो, No matter I can't see फिर भी anything, हम आपके अंदर हमेशा खुशी के साथ रहेंगे। still we want to be thankful. फिर to भी you. हम आपके अंदर आनंदित के साथ रहेंगे। We will be thankful and grateful. यस to you, लॉर्ड Lord. जीसस, Thank you, Lord. पूरी तरह से कलीसिया को अर्पित करते We are हैं, surrendering fully the church. पूरी तरह से बहन भाई बच्चे सबको अर्पित करते All the हैं। brothers, sisters, children, everyone we give. in आप your उनको hands. पूरी तरह से चलाइए। You lead them, Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। वी मेक दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ लॉर्ड और हम ये जीसस। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से Amen. मांगते हैं। Amen, amen, amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.